Jai students, in previous lecture we studied about the derivatives of constant function, derivative of polynomial function, and how to find the derivative of trigonometric function. So today we will learn how to find out the differentiation of exponential functions, logarithmic and inverse trigonometric function. First of all, we will take its exponential function. So let y is equal to e की power x. So how to find out the derivative of y is equal to e की power x? We know that the derivative of e की power x is e की power x. But how? So with the help of first principle, we will find out. Let us see कैसे. ddx of e की power x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h. So this is the formula for what? This is the formula of first principle, and with the help of first principle we will derive this derivative. So function का अगर वैल्यू पुट करें तो लिमिट h approaches to 0 f x plus h पुट करना है, जहां पे इसको मैं f of x भी लिख सकता हूं. यू नो दैट f of x की वैल्यू e की पावर x है, तो आई कैन राइट लाइक दिस e की लिमिट e की पावर x plus h माइनस e की पावर x अपॉन h. देन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, यहां पे रह जाएगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन h. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर x ये बाहर आ गई, और यहां पे रहेगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन h. सो जो इसकी वैल्यू होती है, यू ऑलरेडी नो कि इसकी वैल्यू होती है 1. तो द आंसर इज e की पावर x. सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वी फाउंड दैट dy अपॉन dx और किसका e की पावर x का जो होता है वो e की पावर x ही होता है. सो वट एवर वी लर्न, आई एम राइटिंग हियर ऑल द फॉर्मूलाज वन बाय वन. ddx ऑफ x की पावर है, दिस ऑल्सो वी प्रूव्ड. ddx ऑफ कांस्टेंट 0, देन d upon dx of sin x, this also we prove cos x. Then d upon dx of cos x, this is equal to minus sin x. d upon dx of tan x, this is equal to secant square x. d upon dx of cot x, this is equal to minus cosecant square x. d upon dx of secant x, that is secant x tan x. d upon dx of cosecant x, that is equal to minus cosecant x cot x. So all these derivative of all these functions already we studied. So today we found that d upon dx of e की power x is equal to e की power x. Now come to our second exponential power. Now if function fx is equal to a की power x and a is any positive real number or a is not equal to 1, a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है. a पॉजिटिव रियल नंबर है. अब इसका dx क्या होगा? सो अगेन d अपॉन dx ऑफ a की पावर x क्या होता है, दैट वी नो, बट विल फाइंड कि हाउ वी ड्राइव दिस फॉर्मूला. हमें ये कैसे बनाया है. इट इंप्लाइज लिमिट h
approaches to 0, f of x plus h minus f of x upon using first principle, limit h approaches to 0, हमारे पास f of x a की पावर x है, अगर x की वैल्यू x प्लस h आ जाएगी तो ये बन जाएगा a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x अपॉन h. It implies limit h approaches to 0, a की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया a की पावर h माइनस 1 अपॉन h. इसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि लिमिट h पे है. a की पावर x लिमिट h approaches to 0, ah minus 1, and in 11th class in the limit and derivative chapter we studied that कि इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है log ऑफ क्या कांस्टेंट, where so d upon dx of a की पावर x क्या आ गया, a की पावर x log of a. So I can write here d upon d की पावर x, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log of a. Pause the video to note down. Now come to logarithm function. How to find out what is the derivative of log function? So ये है log x और बेस में है एक्सपोनेंशियल, नेचुरल लॉग इसको कहते हैं. सो ये आ जाएगा d अपॉन dx, किसका निकालना है log ex. दिस इज नॉट ए e की पावर, ये log x बेस में e है. सो अगेन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h approaches to 0, f of x plus h minus f of x upon h. So again it implies limit h approaches to 0, वैल्यू पुट करेंगे ये बन जाएगा log e, ब्रैकेट में x की जगह पे यहाँ पे x plus h, log e यहाँ पे ब्रैकेट में x अपॉन h. अब log की डेफिनेशन आप जानते हैं, log a माइनस log b वो होता है log a अपॉन b अपॉन h. x से डिवाइड कर देते हैं. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, log e x 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h, सॉरी h, ये वाला h आ जाएगा. नाउ अब log के अंदर जो भी चीज है 1 प्लस, वी नो द फॉर्मूला कि log 1 प्लस x अपॉन x जब बेस में e होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1. तो हमें ये जो जहां पे h अपॉन x है नीचे भी चाहिए, तो मैं x से डिवाइड कर लेता हूं, x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं. नाउ 1 बाई x बाहर आ जाएगा क्योंकि लिमिट h पे है. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, log e 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1. log 1 प्लस जो भी यहाँ फंक्शन होता है डिवाइड में वही फंक्शन नीचे, और अगर बेस में e है तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है. तो योर डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x. नाउ कम टू दिस, दिस इज log x बट बेस में क्या है a. a क्या है, a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0. एनी कांस्टेंट यू कैन से दैट. अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल टेक हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल अगेन टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन. सो इट implies limit h approaches to 0, f of x plus h minus f of x upon h. It implies limit h approaches to 0.
यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे x था, तो अब यहाँ x प्लस h है, तो ये आ जाएगा log a बेस में, और अंदर आ जाएगा x प्लस h माइनस log a बेस में, अंदर आ जाएगा x अपॉन h। अगेन log a माइनस log b, so you can write h approaches to 0 log base a upon b upon h. So it implies limit h approaches to 0 log a 1 plus h upon x upon h. अब ये वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर मैं इसके नीचे x से डिवाइड भी कर दूं तो भी ये 1 नहीं बनेगी, जब तक यहां पे क्या नहीं होगा, e नहीं होगा। सो हमें ये पता है कि अगर log बेस में a log b बेस में a हो तो हाउ वी कैन राइट लाइक दिस log b अपॉन log a, और यहां पे इसके बेस में क्या आ जाता है, e आ जाता है। तो अब हम यही चीज करेंगे, log ये क्या है b, ये क्या है बेस में a, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log e, b की वैल्यू 1 प्लस h अपॉन x डिवाइड में log a, ये जो बेस में था, तो यहां पे बेस में क्या है, a ही है, e a इनटू h का ही था। अब इसको 1 बनाया जा सकता है अगर h अपॉन x भी नीचे आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई कर लिया, x से डिवाइड कर लिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो मैं क्या करता हूं, जो बाकी चीजें बची हैं उसको बाहर लिख लेता हूं, 1 अपॉन x log ऑफ e a, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log e 1 प्लस h अपॉन x and this is equal to 1, so your derivative is 1 upon x log of e a. This is your derivative. Now come to that side. Whatever the formula we derived, I am writing here one by one. Now 11 dx of, सबसे पहले हमने ड्राइव किया log, तो इसका जो होगा वो क्या आएगा, इसका आएगा 1 upon x 12। फिर हमने ड्राइव किया ddx of log बेस में a और यहां पे x, और उसका कितना आया 1 upon x log बेस में e a, where a is greater than 0 और x is greater than 0। यहां पे क्या था, x is greater than 0। सो ये इसका था कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, इसमें भी ये था कि a जो है वो greater than 0 होना चाहिए और x भी greater than 0 होना चाहिए। सो this, now pause the video to note down. Now how to find the derivative of absolute value function, it means modulus function, and derivative of inverse. So I will tell you how to find out the inverse, derivative of sine inverse x, and then I will tell you about secant inverse x. Rest one you can derive by your own. So here we can use first principle also, and we can also find out the derivative of this. कैसे देखते हैं, fx की वैल्यू ये है मॉडुलस ऑफ x, और मॉडुलस ऑफ x को कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट से जो वैल्यू बाहर आएगी वो भी क्या आएगी, प्लस माइनस एक्स। सो मॉडुलस ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ फाइंड आउट द डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर या अंडर रूट कैसे है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या होगा इसका डेरिवेटिव,
इसका डेरिवेटिव सबसे पहले अंडर रूट मतलब 1/2। तो सबसे पहले क्या होता है डेरिवेटिव में, पावर नीचे आती है। जैसे हमने पढ़ा था x की पावर n की करेंगे तो n नीचे आएगा और पावर में क्या हो जाएगा, कम। सो पावर नीचे आई, पावर में एक क्या हो गया, कम। तो 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2। उसके बाद ये तो पावर की भी, फिर जो अंदर फंक्शन है यानी x, उसकी करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है। अगेन अगर x स्क्वायर है तो पहले पावर है, तो x स्क्वायर की करेंगे, पावर नीचे आई 2x। तो अब इस 2 की भी होगी, अब बचा x, तो x की कितनी होगी, 1। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, x। इसको नीचे ले जाते हैं, नेगेटिव पावर है, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी एक्चुअल में हमने क्या वैल्यू थी, मॉडुलस ऑफ x अपॉन where x is not equal to 0. So the derivative of absolute function is x upon absolute function where x is equal to 0 पर, listen very carefully, at x is equal to 0 मॉडुलस फंक्शन जो होता है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि फिर हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, बट एक्सेप्ट 0 ये सभी रियल नंबर्स पर क्या होता है, डेरिवेटिव इसका निकाला जा सकता है। सो एट x इज इक्वल टू 0 दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता है। कम टू इनवर्स फंक्शन, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, x बिलोंग्स टू ये -1 1 को करेगा, y माइनस π/2 से π/2 करेगा। ध्यान से सुने, इसको निकालने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज भी कर सकते हैं, और वन मोर मेथड इज देयर दैट आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स और हाउ यू कैन ड्राइव आउट द फॉर्मूला। सो इसको मैं इधर लाता हूं, sin y इज इक्वल टू x। अब x इज इक्वल टू sin y। अब मैं क्या करूंगा, मैं x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा। मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dx, कोई बात नहीं। अब मैं क्या निकालूंगा, dx अपॉन dy। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy, और साइन का करेंगे, साइन की dx अभी मैंने आपको वहां फॉर्मूलेस में लिखी थी, वो होती है cos y। cos y का मतलब क्या हुआ, अगर cos y को साइन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ध्यान से देखें, ये प्रॉपर्टी है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अगर cos को साइन की फॉर्म में लिखना हो, साइन की फॉर्म में क्यों लिखना है, क्योंकि हमें साइन का ही डेरिवेटिव निकालना है। पर ये दो वैल्यू आ गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम इसके अनुसार लेंगे cos y, यानी कि जो y है ये माइनस π/2 से π/2 है, तो ये इसका मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस π/2 से 0 और 0 से π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन दोनों ही क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो क्या होता है, इट इज पॉजिटिव। सो हम नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करेंगे और हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब ध्यान से देखें, अगर dx अपॉन dy 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इफ dx अपॉन dy इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इट इंप्लाइज cos y इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि cos y भी किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y इज नॉट इक्वल टू π/2। यहां पे y की वैल्यू π/2 नहीं रखी जा सकती, क्यों, क्योंकि जैसे ही π/2 रखा जाएगा ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी प्लस माइनस π/2 क्योंकि
वैल्यू क्या होती है इसकी? 0 होती है। इसका मतलब हुआ इट इम्प्लाइज y जो डज नॉट बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग नहीं करेंगे, इसकी कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? y इज नॉट इक्वल टू -1 और सॉरी y इज नॉट इक्वल टू 0। भाई सिंपल है, अगर y को हम -+π/2 नहीं रखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं आएगी, और अगर इसको मैं हटा ही दूं ना ही लिखूं तो इससे ही पता लग जाएगा कि इसकी ये वैल्यू नहीं रखी जा सकती है। अब इसकी बात करते हैं, हमें निकालना क्या था? dy/dx। हमारे पास क्या था ये, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो एक ही बात है, सेम थिंग 1/dx/dy, उल्टा करूंगा तो ये बन जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू? dx/dy की वैल्यू क्या थी? 1 - sin² y। ओके, नाउ 1 sin y की क्या वैल्यू थी? x, सो 1 - x²। और हमने बताया था कि ये ±π/2 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं लेंगे, तो x किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल -1 to 1। सो ddx डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x is equal to 1/1 - x², where x belongs to -1 to 1 open interval. So like this we can find out the derivatives of, or we can derive the formulas of all the inverse trigonometric function. So this is the another way, or you can use first principle method also to find out the solution. Pause the video to note down. Now डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x, साइन इनवर्स का आपको बताया, कॉस इनवर्स का सेम है, सिर्फ उसमें क्या लग जाता है? -1/√1 - x²। tan इनवर्स इज क्वाइट इजी, कॉट इनवर्स इज क्वाइट इजी। नाउ कम टू सेकेंड इनवर्स x। जैसा सेकेंड का है वैसे ही कोसेकेंड इनवर्स x का है। सो आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x और हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला। सो y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x है, ये आप जानते ही हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, y की वैल्यू इसको बिलोंग करनी चाहिए। सो y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x को मैं cos इनवर्स x के फॉर्म में लिखता हूं cos इनवर्स 1/x। क्यों? क्योंकि हमने अभी cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला था वो हमें पता है कि कैसे ड्राइव होता है। सो मैं उसी की हेल्प लेके आई विल ड्राइव दिस फॉर्मूला। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। So dy/dx differentiate with respect to x। cos इनवर्स को करेंगे तो cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर इनटू इस एंगल की दोबारा से, किसकी? एंगल की। क्योंकि डेरिवेटिव में क्या होता है, हर चीज का डेरिवेटिव किया जाता है। सबसे पहले हमने cos इनवर्स का किया, उसके बाद जो एंगल था उसका करेंगे। सो dy/dx इक्वल टू -1/√1 - x²। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर न्यूमिनेटर कांस्टेंट है तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, ध्यान से देखो, तो पावर क्या बन जाएगी? -1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? पावर डाउन, पावर में एक कम हो गया। सो आई कैन राइट -1/x², इस पावर को पॉजिटिव कर दूं तो ये आ जाएगा -1/x²। सो -1 एलसीएम लेता हूं, x² -1, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? √x² इंटू -1x², माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ये जो नीचे अंडर था ये ऊपर चला गया। अब क्या बचा देखें ध्यान से, √x² को कैन आई राइट लाइक दिस मॉडुलस ऑफ x, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जब डेरिवेटिव किया था तो बताया था
कि मॉडुलस ऑफ एक्स को अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और अगर एक्स स्क्वायर को लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है, मॉडुलस का स्क्वायर। सो ये दोनों बराबर हो गए हैं। सो मॉडुलस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गए थे, इसको मैं लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया। अब इससे ये कैंसल आउट हो गया। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? सो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है ये। अब कोसेकेंड इनवर्स का लिखेंगे, सेम टू सेम आएगा, सिर्फ यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सेम डेरिवेटिव होगा। सो लाइक दिस यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला फॉर ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू, you can derive all these inverse trigonometric formulas with the help of first principle also. So you can try, and if you are not able, then you can send me a message. Again I will make a video. I will prove all these derivative using first principle. Pause the video to note down. Now after this we will start with the exercise 5.2. Differentiate the following function with respect to x. First, second question and third. यानी ये फर्स्ट के क्वेश्चन के तीनों पार्ट हैं। सो लेट अस सी वन बाय वन। जब भी डिफरेंशिएट करना है, इफ y इज नॉट देयर देन लेट y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx। फिर हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो मैंने डी अपॉन डी एक्स, यानी ये जो फंक्शन है इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। इट इम्प्लाइज सबसे पहले साइन, क्योंकि बाहर साइन है, साइन एक अलग फंक्शन है, और ये जो उसका एंगल है दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो साइन का करेंगे तो साइन की जो डी एक्स होती है वो क्या होती है, कॉस। जो उसका एंगल होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब सेकेंड फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन एंगल था उसकी की जाएगी एट ए टाइम पर एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जैसे मैंने इसको किया। सो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे, अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है एक कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का करेंगे तो वो 0, नो नीड टू राइट, हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल को पहले लिखा जाता है। सो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास dy अपॉन dx। कम टू सेकेंड, अगेन y इज नॉट देयर, सो लेट y इज इक्वल टू cos sin x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx is equal to d upon dx of cos sin x। सबसे पहले वही बाहर जो फंक्शन है उसका cos का, और ये जो फिर एंगल का। तो cos का किया तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, और जो भी एंगल आएगा वो ऑलरेडी ऐसे लिखा जाएगा, d upon dx of, फिर किसका करेंगे, साइन का। अभी मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू कि एट ए टाइम वी ओनली डिफरेंशिएट वन फंक्शन। मैं ऐसे नहीं कर सकता, cos का तो माइनस साइन लिख दूं, साइन का फिर से cos x लिख दूं, दैट इज रॉन्ग वे, वो गलत है। अब इसका करेंगे तो माइनस साइन और उसका एंगल साइन x, साइन का करेंगे तो वो क्या होता है, cos x, dy अपॉन dx। कम टू थर्ड, अगेन दिस एंड दिस फर्स्ट पार्ट इज सेम। यहां पे बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर जो इसका एंगल है ये पॉलिनोमियल प्लस कांस्टेंट फंक्शन है। सो मैं इसको लिखता हूं, लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ साइन
ax प्लस b। सबसे पहले फंक्शन का, सो साइन का करेंगे तो cos एंगल एज इट इज। नाउ अब हम करेंगे किसका, एंगल का। मैंने एंगल का भी किया नहीं, इसलिए मैंने इसको d अपॉन dx की फॉर्म में लिखा कि इस फंक्शन को मैं विद रिस्पेक्ट टू x आई विल डिफरेंशिएट। सो cos ax प्लस b। ax का जब आपको बताया गया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, x की करेंगे तो 1 आ जाएगी, और b का 0। तो वेरिएबल को, कांस्टेंट को सबसे पहले लिखा जाता है। सो दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो आई showed you already कि how to derive all these formulas, how to find out the derivative, how to derive the formulas of these derivative with the help of first principle, or some other methods are also there. So you have to learn all that methods कि how we can derive all these formulas, and you have to learn all these derivative of these functions also directly. We will use these derivatives directly in the questions. Pause the video to note down and learn all the formulas. Till then, Jai Hind.